وہ 2 दिन سے گھر نہیں گیا تھا کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کی محبت جو کہ 4 سال اس کے نام رہی تھی، آج ایک پل میں اس کے چھوٹے بھائی حسنال بخت کے نام ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ذات میں سلجھا ہوا شخص، بہت بکھرا ہوا تھا۔ اس بکھرے پن کی وجہ اشنال بخت تھی۔ روشنال بخت کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اشنال بخت اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ وہ جو اس سے 12 سال چھوٹی تھی، اس کا منہ سے بچہ بچہ کہتے تھکتا نہیں تھا، وہ 2 دن پہلے اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اگر اشنال بخت اس کے سامنے ہوتی تو روشنال بخت اس کا حشر کر دیتا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے والدین، جو اس کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، اشنال کی ایک بات کی وجہ سے وہ ساری عزت ریت کا محل ثابت ہوئی تھی۔ بابا کی وہ ایک بات نہیں سہ پا رہا تھا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بار بار بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ 2 دن سے اس کو کوئی بلا نہیں رہا تھا۔ غصہ جب حد سے سوا ہوا تھا تو گھر کی طرف قدم بڑھائے، کیونکہ 2 دن سے وہ گھر والوں کے تانے ہی تو برداشت کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، ڈور لاک لگایا اور پھر بیڈ کی طرف بڑھا، لیکن یہ کیا، وہ اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے غصے کا گراف اور بڑھا تھا۔ اٹھو، میری نیندیں برباد کر کے مزے کر رہی ہو؟ روشنال بخت نے غصے سے بلینکٹ اتار کر نیچے پھینکا تھا، جس سے اشنال کے کپڑے بے ترتیب ہوئے تھے۔ اے اٹھو بے غیرت عورت! وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر جو آیا منہ میں وہ بول گیا تھا۔ اشنال اس کو ایک دم دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بھائی آپ یہاں! وہ اٹھ کر ایک دم سے اس کے گلے لگی تھی۔ اشنال نے اس کی گالی نہیں سنی تھی، اس لیے اس سے لپٹ گئی۔ بھائی آپ تو جانتے ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں، چٹاخ! وہ اسے خود سے علیحدہ کرتا اس کے نازک لب پر تھپڑ رسید کر گیا۔ خبردار بازاری عورت! تمہیں کس نے کہا کہ میرے روم میں آؤ؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ مجھے چھوٹی امی نے کہا تھا کہ میں اب اس کمرے میں رہوں گی، وہ سہم کر بولی۔ تو اپنی جگہ پر سو، یہاں میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اپنی جگہ پہ جا کے سو، میں یہاں تمہیں برداشت ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ اسے نیچے دھکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ یہ ہے تمہاری جگہ۔ اشنال نے اس کے تیور دیکھ کر سہم کر قدم پیچھے کیے تھے۔ آپ بھی مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات تو سنیں گے نا؟ میں تو سمجھی تھی کہ آپ دنیا کے وہ آخری انسان ہوں گے جو میری بات رد نہیں کریں گے۔ ایک اور لفظ نہیں، آج میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ واقعی تم ایسی لڑکی نہیں ہو، کاش مجھے یہ بات پہلے ہی سمجھ آ جاتی۔ یہ لفظ تو 18 سال کی معصوم لڑکی پر تازیانہ بن کر گرا تھا۔ بھائی میری بات تو سنیں۔ بھائی بے غیرت عورت، جو تم نے کیا ہے نا، آج تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھر معصومیت کے ناٹک کر کے دکھا رہی ہو تم مجھے۔ میں نے تو تمہیں بہن سمجھا تھا، لیکن تم نے مجھے بھائی نہیں سمجھا۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اب وہ زمین پر بیٹھا اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرے ماں باپ کا یقین اٹھ گیا ہے مجھ سے، میری محبت مجھ سے جدا کر دی گئی ہے تم نے، میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا تم نے۔ ایسی کون سی آگ لگی ہوئی تھی تم میں جو مجھ سے بجھانا چاہتی تھی؟ سب لوگوں کا مان تھا مجھ پر، جو ٹوٹ گیا پل بھر میں، جو کہ میں نے نہیں تم نے توڑا، تمہاری وجہ سے ٹوٹا ہے۔ پلیز میں سب بتا دوں گی کہ سچ کیا ہے، کہ منال آپی نے اس رات آپ کے کمرے میں… بکواس بند کرو اپنی، ورنہ زندہ گاڑ دوں گا زمین میں تمہیں میں، واہیات عورت! خبردار جو تم نے منال کے بارے میں کچھ بھی کہا، اپنے گناہ اس بیچاری پر مت تھوپو، تھو ہے تم پر۔ اپنی بہن کی خوشیاں چھین لی تم نے، میں تو پھر… اشنال کی تو مانو کاٹو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ پلیز آپ میرے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، میں تو آپ کی لاڈلی تھی نا۔ آپ میرے لیے میرے ہی سامنے اتنی ابیوزو ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ وہ اتنے معصوم لہجے میں بات کر رہی تھی کہ ایک پل کو تو روشنال بخت کا بھی ماتھا ٹھنکا، لیکن اس کے آگے اس کے الفاظ آئے تھے جس کی وجہ سے وہ جل کر رہ گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر یہ جو معصومیت کا ماسک چڑھا ہے نا، کل تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اٹھ گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کل سب گھر والوں کو بولوں گی کہ آپ بے قصور ہیں۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی، پھر تو آپ مجھے غلط نہیں کہیں گے نا، اور گالیاں بھی نہیں دیں گے نا آپ مجھے؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہی تھی۔ کیا ٹھیک کرو گی؟ ہاں، میرے ماں باپ کا بھروسہ تو تم نے توڑ ہی دیا ہے، اور تمہاری وجہ سے منال مجھ سے دور ہو گئی۔ تمہیں تو پتا تھا نا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، پھر کیوں یہ فریب؟ ہاں، تمہارے ایسا کرنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ میری کھوئی ہوئی عزت واپس آئے گی اور نہ مجھے منال مل پائے گی۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے کھو دیا۔
मैं 2 दिन से उससे नजरें नहीं मिला पा रहा, लेकिन मत सोचना ये कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा कि तुम जी सकोगी और ना मर सकोगी। मौत मांगोगी तो मौत नहीं मिलेगी, और जिंदा तो तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो उसके करीब हुआ, उसका दुपट्टा उसके वजूद से अलहदा किया। वो ठंडी जमीन पर बैठी पीछे को सरकने लगी। इतनी मासूम तो नहीं थी कि उसकी निगाहों को समझ ना सकती। औरत को अपने ऊपर पड़ी हर निगाह समझ जाती है, लेकिन आज उसकी निगाहों से अपनी इज्जत उसको नजर नहीं आई थी। मैंने कुछ नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से सबकी नजरों में मेरा मजाक बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, काठ का उल्लू समझ लिया था सबने मुझे, शोहर बना दिया मुझे तुम्हारा। तो मैं क्यों इस रिश्ते से दूर रहूं? आज तुम्हें फिर मैं तुम्हारा शोहर बन कर दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर उसका मासूम सा दिल बंद होने लगा। प्लीज नहीं, जब मैंने सबकी जली भुनी सुनी है तो तुम्हें क्यों ना उस दर्द से गुजारूं। नहीं, आप तो मेरे सुपरमैन है ना, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो नाकाबिले यकीन हालत में अपनी जुबान की कपाहट पर काबू पाते हुए बोली, मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा। आज इश्नाल का यकीन टूटने की दहलीज पर था। वो अपने और उसके दरमियान जरा सा भी फासला मिटा गया था, जबकि इश्नाल बख का आज मान टूटने पर आया हुआ था। वो जिस शख्स की आंखों में हमेशा इज्जत, मान और अकीदत होती थी, आज नफरत, गुस्सा और जिद थी। आज वो उसकी सांसें छीनने पर आया हुआ था। रात का 1 बज रहा था। सब सुकून से बिस्तरों पर सो रहे थे, लेकिन वो अपना मान टूटते हुए देख रही थी। प्लीज नहीं, मैं तो आपकी ईशू हूं ना, सब क्या सोचेंगे? प्लीज चले जाएं यहाँ से, मैं मर जाऊंगी। ईशू नहीं, तुम मेरी नाम नेहाद बीवी हो, जो कल बड़े मजे से मोहब्बत का इजहार कर रही थी मुझसे। तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। ये तुम ही थी ना घटिया औरत, जो कल इसी कमरे में मुझसे इजहार मोहब्बत कर रही थी। वो उसके अल्फाज दोहरा रहा था। जनाजा निकाल कर रख दिया तुमने मेरी इज्जत का। वो फिर से जरा फासले पर होकर उठने लगी, जब जब वो फिर उसे अपनी तरफ घसीटने लगा। खबरदार, यहाँ से जाना तो है नहीं। जिन लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाया था ना तुमने, उनके सामने अब तुम्हारा तमाशा बनेगा। नहीं, प्लीज। वो बिगड़ना वस्ल की रात का, वो नहीं नहीं की हर अदा। वो मायनी खेजी से शेर पढ़ता उसे अपनी तरफ घसीट चुका था। रोशनाल बक ने पल में उसका बरसों का एतबार तोड़ दिया था। उसकी सिसकियां, मजामतें कुछ काम ना आई थी। नफरत की आग में रोशनाल के सारे एहसासात मर चुके थे। वो उसे भी उस अजियत से गुजारना चाहता था जिस अजियत से वो खुद गुजरा था। आज इश्नाल बक अपना सब कुछ हार गई थी। उसने जो कहा था वो करके दिखाया था। ना उसे जिंदों में छोड़ा और ना मुर्दों में छोड़ा। आज लोग जीत गए थे, मनाल जीत गई थी, लेकिन इश्नाल अपना सब कुछ हार गई थी, इज्जत तक भी। मनाल को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक पल में क्या से क्या हो गया था। जो गड्ढा उसने इश्नाल के लिए खोदा था वो खुद उसमें जा गिरी थी। दरवाजा खोले, मैं कह रहा हूँ कि दरवाजा खोले। मनाल जो अपनी सोचों में गुम थी, जब हसनाल की आवाज आई, क्या है, क्यों मेरा जीना हराम कर रहे हो? वो दरवाजा खोलती दांत पीस कर बोली, मैं आपका शोहर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो भी शायद उसकी इज्जत कर रहा था। शोहर हो, मैंने गोद तो नहीं ले लिया ना? तो ले लेना, 4 साल बड़ी हैं। वो हाथ फैलाने वाले अंदाज में खोलता, उसे आंख विंग करके ढिठाई से बोला, चुप, एकदम चुप, बदतमीज इंसान। मैं तो तुम्हें छोटा बच्चा समझती थी। आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं। सबसे पहले तो मैं आपसे बड़ा ही लगता हूँ, और दूसरा, अब मैं आपका शोहर बन गया हूँ। अब तो मुझे बच्चा समझने की गलती भी मत कीजिएगा, वरना नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी। अभी वो अपनी चप्पल उतारती कि जिस दरवाजे से वो अंदर आया था उसी से निकलता, फिर से बंद कर गया था। खोलो, बदतमीज इंसान, खोलो, बदतमीज इंसान। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मैंने तो कहा था कि आप मुझे पकड़ें, और जरा कस के पकड़ें, लेकिन आपकी अपनी गलती है ना। वो इतनी शिद्दत से रो रही थी, रात वाला मंजर उसकी निगाहों से हट ही नहीं रहा था। वो जमीन पर बैठी ये सोच रही थी कि रोशनाल इस हद तक कैसे गिर सकता है। उठो जल्दी से, अपना हुलिया सही करो और नीचे आओ। कुछ देर खूंखार नजरों से उसे वो देखता रहा, लेकिन उसे टस से मस ना होता देख वो झुंझला कर रह गया था। अशनाल ने नजरें उठाकर उसे देखा। वो उसको घूरता पाकर नजरें झुका गई। ऐसे घूर क्या रही हो? उठ जाओ, नहीं तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो उसकी धाड़ती आवाज वो उसकी धाड़ती आवाज से गिरती पड़ती अपने टूटे वजूद को लेकर उठी और वॉशरूम में बंद हो गई। वो नीचे आई तो सबने उसे देखा। वो कंफ्यूज होकर नजरें झुका गई। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। चलो,
रोशनाल ये कहकर सूटकेस लेकर जाने लगा था। कहाँ? वो उसके गले में गिल्टी उभरी थी। हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हनीमून पर ले जाना होगा ना तुम्हें, इतनी भोली क्यों बन रही हो? मेरी बेटी की खुशियों पर डाका डालकर उसके नसीब पर तो स्याही मल ही दी है। प्लीज अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप यकीन करें मेरा। वो गिड़गिड़ाने लगी थी। मैंने आपी की खुशियों की हमेशा दुआ की है। नहीं हो तुम मेरी बेटी, मर गई थी तुम्हारी माँ, मेरे लिए पैदा करके मर गई थी वो। और तुमने भी तो दिखा दिया ना कि तुम मेरी सौतेली ही हो। मैंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी परवाह की, और तुमने क्या किया? डस लिया मुझे। समीना बेगम संगदिली की हर हद पार कर गई थी। प्लीज अम्मी, मुझे, वो टूटे फूटे लहजे में कहती उनके हाथ पर अपना हाथ रख चुकी थी। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। उन्होंने उसे जोरदार धक्का दिया जो कि रोशनाल के कदमों में जा गिरी थी। वो उठी। ताई अम्मी, आप तो मेरी बात का यकीन करें। वो अब तहमीना बेगम की तरफ आई। जाओ, वो तुम्हें शहर लेकर जा रहा है। वो उसके आंसू पोंछ कर गले लगाते बोली थी। उसने आगा जान की तरफ देखा जो निगाहें फेर चुके थे। वो शुरू से उसे नहीं बुलाते थे। इशनाल ने सबकी तरफ रो कर देखा मगर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मनाल कह कुछ नहीं रही थी लेकिन अपनी जगह पर वो शर्मिंदा हो गई थी। इशनाल सही कह रही है, ये उसका भी तो घर है ना। हसनाल ने उसकी तरफदारी की लेकिन आगा जान की कड़ी नजरों से खामोश हो गया था। सबको खामोश देखकर उसको झटका लगा। क्या उसकी जात इतनी अरसा हो गई थी कि सब उसको निकाल रहे थे उस घर से? वो सबकी तरफ देखकर रोने लगी थी। तुम इसे लेकर जा रहे हो या नहीं? समीना बेगम ने सख्त आवाज में रुशनाल को देखकर कहा। जहूर सामान रखो गाड़ी में, चलो। रुशनाल ने मुलाजिम को कहकर उसका हाथ पकड़ा और जाने लगा था। प्लीज मुझे ना लेकर जाए, मुझे माफ कर दें सब। लेकिन रुशनाल कान बंद कर गया था। मैंने नहीं जाना आपके साथ, आप गंदे हैं। वो उसका हाथ छुड़वाने लगी। रुशनाल ने दूसरा हाथ घुमाकर उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा था और उसे घसीटता कार में धक्का देकर डोर लॉक किया और खुद दूसरी तरफ आकर बैठ गया। अब आप सब खुश हैं? अब आ गया चैन आप सबको? ये उसके बाप का भी घर था। हसनाल बज़ाहिर ठंडे मिजाज का मालिक था पर उसके आंसू देखकर चुप नहीं रह पाया था। सारा रास्ता वो रोते आई थी। रोशनाल ने उसे चुप नहीं करवाया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसके रोने से। वो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। घंटे बाद वो फ्लैट में पहुंचा और उतरा तो इशनाल ने भी उसकी पैरवी में पांव बाहर निकाले गाड़ी से। चाबी निकालकर उसने फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। फ्लैट बिल्कुल न्यू और फैंसी सा था। सामान भी नया था। सोफे, बेड वगैरह हर चीज थी। 4 कमरे, अमेरिकन तर्ज का किचन, लाउंज भी बहुत बड़ा था। ये फ्लैट उसने तकरीबन साल पहले खरीदा था जब वो एमबीए करके पाकिस्तान आया था। रोशन ने फ्लैट इसलिए खरीदा कि अगर कभी वो ऑफिस से लेट हो जाता तो रात यहीं रुक जाता था। और ये फ्लैट उसने कबीर साहब के कहने पर खरीदा था। वो घबरा गई थी फ्लैट देखकर। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये सामान सेट कर देना। वो उसको हक्का बक्का देखते हुए बोला जो फिर से रोने पर उतरी हुई थी। मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। रोशन बचपन से उसे जानता था कि वो अंधेरे से कितना डरती है, फिर भी वो उसे अजियत देना चाहता था। जैसे और रहती हैं, अब रोई तो लिहाज नहीं करूंगा, थप्पड़ लगा दूंगा। वो रात से उसको रोता हुआ ही देख रहा था। वो और फूट फूट कर रोने लगी। बंद करो ये ड्रामा, जीना हराम करके रख दिया है तुमने मेरा। वो उसके रोने से झुंझला गया था मगर वो और बुलंद आवाज में रोने लगी। रुशनाल के गुस्से का ग्राफ और बढ़ गया था। तुम्हारा रोना नहीं बंद हो रहा ना? ओ, अब समझ आई। तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। वो उसे बाजू से पकड़ता करीब कर गया जबकि इशनाल अपना रोना भूल गई। खौफजदा होकर उसे देखने लगी। अपने आप को उसके बाजू से छुड़ाना चाह, वो तड़प कर उसके हिसार से निकली। अब क्या हुआ? यही तो तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा होकर रहूं और किसी काम का रहूं ही ना। उसकी घटिया बातें सुनकर उसका चेहरा एहानत से लाल हुआ था। आंसू फिर से निकल पड़े थे। मेरे वापस आने तक ये सामान सेट होना चाहिए। वो कुछ पल उसे रोता देखता हुक्म देकर घर से ही निकल गया था। उसके जाने के बाद वो फिर से रोई। उसकी एक गलती, उसका आखिरी ख्याल रखने वाला शख्स भी उससे दूर हो गया था। वो पछता रही थी। काश वो मनाल की बातों में ना आती और ना उसका मुहाफिज इतना बदला हुआ होता। अशनाल बख को रोशन बख के रवैये ने तोड़ कर रख दिया था। वो मोम की गुड़िया उस मेहरबान का लहजा सह नहीं पा रही थी। वो सारा दिन फ्लैट साफ करती रही। पहले वो कुछ देर खौफजदा रही थी लेकिन फिर ये सोच कर कि अब उसने दिन तन्हा ही गुजारने हैं। सूटकेस जो कि काफी भारी था बमुश्किल खींच कर ऊपर ले गई। उसके कपड़े निकाल कर सेट किए। ये काम करने के बाद किचन का फर्श धोया, हर चीज को साफ किया। मगरिब की अजान हुई तो वजू करके नमाज पढ़ी और सूरह यासीन पढ़ने वहीं बैठ गई।
और वहीं सो गई थी। वो काफ़ी रात को घर आया था। पूरा फ्लैट चमका हुआ लग रहा था। हर चीज़ तरतीब से रखी हुई थी और बड़ी नफीस अंदाज में सजा कर रखी गई थी। उसने खाना किचन में रखा और रूम में गया, जहाँ वो नमाज वाले स्टाइल में दुपट्टा लपेटे सो रही थी। कुछ पल तो वो उसके मासूम चेहरे को देखता रहा और उसके पास जा बैठा। वो अभी उस पर झुकता कि उसकी आंख खुली। रोशन सीधा होकर बैठ गया, जबकि अशनाल थोड़ी सी खाइफ हुई। उठो, खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। उसके सर तासुरात देखकर वो उठ खड़ा हुआ था। वो किचन में आई, खाना गर्म करके टेबल पर रखा। जब वो अपने सर पर हाथ फेरता टेबल पर जा बैठा था और खाने लगा था। खाना खाकर नैपकिन से हाथ साफ करके उठ खड़ा हुआ। कैबिनेट के ऊपर सामान पड़ा हुआ है, वो निकाल कर कॉफी बना कर लाओ मेरे लिए। और हाँ, कल मैं सामान लेकर आऊंगा, खाना वगैरह तुम खुद बनाओगी। अगला हुक्म सादिर करता वो चला गया, जबकि वो बेबसी के एहसास से अशनाल की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो कभी तबीयत की खराबी की वजह से खाना नहीं खाती तो वो उसके रूम में ले आता था, उसे टैबलेट देता, लेकिन अब वो कल से भूखी थी और उसको परवाह तक नहीं थी। उसके लिए कॉफ़ी बनाकर वो लाई, जो कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा था। उसने उसके आगे कॉफ़ी का कप रखा, खाना खाया। मसरूफ से अंदाज पर बगैर निगाहें हटाए उसने पूछा था। अशनाल तो खुश हो गई थी उसकी इस परवाह करने से। मुझे रिस्क की बेहुरमती पसंद नहीं और ना ही मेरे पास हराम का पैसा है जो तुम जाया करती फिरो। अपने हिस्से का खाना खाओ, ये ना हो कि कल मैं डस्टबिन में देखूं। अगर डस्टबिन में पड़ा नजर आया तो अपना हशर देखना। अशनाल की सारी खुशफहमी उड़न छू हुई थी। वो रूम से निकल गई थी, जबकि पीछे से रुशनाल कॉफी का सिप भरते अपने रवैये पर गौर करने लगा। उसे पता था कि कल से वो भूखी है। सुबह भी वो उसे जल्दी में ले आया था। दिन भर उसकी थकन का देख उसे डायरेक्ट खाने का नहीं कह सका, क्योंकि उसकी अना ने गवारा नहीं किया था। वो किचन में आई और जहर मारकर निवाले लेने लगी और थोड़ी सी बची हुई कॉफी पीकर बर्तन धोकर लाइट ऑफ करके अंदर चली गई। वो अंदर आई तो वो चेयर पर सर रख के सो रहा था। वो उसके शूज उतारने लगी। उसकी उंगलियों के लम्स पर उसकी आंख खुली थी। ये क्या कर रही हो? वो अपने पाँव झटके से पीछे कर गया। आपके शूज उतार रही थी, मैंने कहा था करने को क्या?" वो उसकी बात काटते हुए जोरदार धाड़ में बोला था। "तो अब इन ओछी हरकतों से तुम मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करोगी?" वो फिर रोने लगी। "दफा हो जाओ, सर में दर्द करके रख दिया है तुमने मेरा।" वो सहम कर पीछे हुई। वो अपने आंसुओं पर काबू पाती रूम से निकलकर लाउंज में आई। वो इतना थका हुआ था कि शूज उतार कर सो गया था। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली थी। करवट बदल कर देखा तो वो कहीं भी नहीं थी। उसको तशवीश हुई। सारे रूम चेक करने के बाद वो परेशान हो गया था, पर वो कहीं भी नहीं थी। वो सही मायनों में परेशान हुआ था, क्योंकि उसने अब हर जगह चेक कर लिया था। वो कहीं नहीं थी। वॉशरूम तक देख लिया था, वो कहीं भी नहीं मिली थी। वो फ्लैट का दरवाज़ा देखने जाता कि उसे सोफे के पास ग्रीन आंचल नजर आया। वो मुड़ता हुआ सोफों के पास आया। वो सोफे की पोस्ट से टेक लगाकर बैठे बैठे ही सो गई थी। सूजी मुतवरम आंखें देखकर एक पल को वो शर्मिंदा हुआ था, क्योंकि कल से उसने उसको ज़हनी अजियत में रखा हुआ था। सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई थी। वो बारीक से दुपट्टे में कब से पड़ी थी। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ये सोचते ही वो सच में परेशान हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाया उसे उठाने के लिए, फिर कुछ सोच कर रुका। उसे झुककर बाजुओं में उठाता रूम में ले आया और बेड पर डाला। कंफर्टर उसे ओढ़ाया और दूसरी साइड पर सो गया। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? समीना बेगम को मनाल की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो सदमे से पागल हो गई थी। हाँ मम्मा, मैंने किया था। उस रात मैंने अशनाल को वो लेटर दिया था। मैंने उसे कहा था कि रोशन को मेरा लेटर देकर आओ, और फूल भी मैंने दिया था उसे। वो तो मेरी मोहब्बत में उस रात रोशन के कमरे में गई थी। मनाल, क्या किया तुमने? अपनी मायों वाले दिन ये पागलपन कैसे कर दिया तुमने? इतना शानदार बंदा और इतनी जायदाद का वारिस इश्नाल के नाम कैसे कर दिया तुमने? सच में पागल हो गई हो तुम। उनके मुंह से सदमे से बात निकल ही गई थी। हाँ मम्मा, मैंने ये क्या कर दिया? आपकी खुद साख्ता नफरत की वजह से मेरा दिमाग सुन हो गया था। आपने 5 साल की उम्र से मेरे दिमाग में फतूर भरना शुरू कर दिया था। आप बज़ाहिर तो सबके साथ बड़ी खुश अखलाकी से पेश आती थी, लेकिन उन सब के लिए मैंने आपके दिल में नफरत उभरती हुई देखी। मैंने देखी थी, आप सबका ख्याल तो रखती थी। आप पापा के सामने अशनाल से मोहब्बत तो करती थी, उससे हंस के बातें करती, उसका ख्याल रखती, लेकिन पापा की गैर मौजूदगी में उसके लिए जहर उगलते मैंने खुद देखा था मम्मा।
आप जिस काम के लिए मुझे मना करती थी और वही काम आप थोड़ी देर बाद खुद कर रही होती थी। मम्मा, आप एक मेरी बात याद रखिएगा, जो बुराई आपके खुद में होती है ना, उस बुराई से बच्चे को मना मत करें, क्योंकि बच्चा वो कभी नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। मैंने आपसे ही तो नफ़रतें, अदावतें मुँह पर बदलना सीखा है। मनाल अपनी माँ की तरबियत पल में उनके मुँह पे मार गई थी। मम्मा, आपने मुझे एक ऐसा खिलौना बना दिया जिसका रिमोट आपके हाथ में था। आप जब चाहे मुझे चलाती रहीं, जैसे चाहे इस्तेमाल करती रहीं। अगर आप मुझे अशनाल से मोहब्बत का दर्स देती तो मेरे दिल में इतना ज़हर नहीं होता। समीना बेगम उसकी बातें सुनकर साकित हुई। मम्मा, मैं मज़ीद दिल में ये गिल्ट नहीं रख सकती। मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करूँगी। आगा जान, ताई अम्मी और ताया जान के सामने। मनाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये मैं कह रही हूँ। वो थोड़ी देर पहले खामोश थी, अब फिर से वही कुछ कर रही थी। ये बेवकूफ़ी की तो मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारोगी तुम, क्योंकि आगा जान का अपनी पोती का प्यार जाग उठेगा और तुम्हें और मुझे धक्के देकर निकाल दिया जाएगा इस घर से। और फिर से उसकी ब्रेन वॉशिंग करने पर लग गई थी वो। मगर मम्मा, मैं अब ये सच नहीं छुपा सकती। मुझे ये गिल्ट जीने नहीं देता। वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। तो इस सच के बाद हसनाल तुम्हें अपने पास रखेगा? तलाक देके मारेगा तुम्हारे मुंह पर और राह लगाएगा। और जो हमदर्दियां मिल रही हैं ना मुझे और तुम्हें, इनसे भी जाओगी। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि सब तुम्हारे साथ हैं। और तो और वो तुमसे निगाहें नहीं मिला पा रहे कि रोशन ने तुम्हें 4 साल नाम पर बिठा कर रखा अपने और अब छोड़ दिया। इस बात का फायदा उठाने की बजाय तुम्हारा सोग ही खत्म नहीं हो रहा। वो उसे फिर से बदगुमान कर रही थी, जबकि मिनाल तासुफ से अपनी माँ को देखती रह गई। और यहाँ गलती मिनाल की नहीं थी, उसकी माँ की थी। बाज़ वालिदैन होते हैं ना जो कि गाली से मना कर रहे होते हैं कि गाली मत निकालो, हालांकि थोड़ी देर बाद खुद गुस्से में गालियां बक रहे होते हैं या ओल फोल मुंह से निकाल रहे होते हैं। याद रखिए, वो बच्चे भी उस वक्त वही होते हैं और वालिदैन का ही तो अक्स बनते हैं वो बच्चे। वो करते हैं जो आप करते हैं, ना कि वो के जो आप कहते हैं। और आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपके इस अमल से बच्चों के दिमाग किस हद तक मुतासिर हो चुके होते हैं।